I'd like to call upon the panelists. First of all, Mr. Supriyo Gupta, who's the founder and MD, Talk Communication, who will be the moderator for this panel. So, next, I'd like to invite Mr. Vicky Roy, who's international photographer, Maybach Foundation. Next, Miss Sanjana John, fashion designer and social activist. Miss Shruti Pushkarna, inclusion and diversity advocate. Last, I'd like to call upon Mr. Ravish Ranjan Shukla, senior specialist correspondent from NDTV. एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन है. एक बार जोर से तालियां हो जाएं. अब थोड़ी सी एनर्जी आई है सब में. ठीक है. Are we ready to start? Yes, sir. We can start. Is Ravish going to be joining? Yes, virtually he will be joining. Okay, he'll be joining. One of our panelists will be joining virtually. Good evening. The panel is going to be discussing confronting biases and inhibitions. ये करीबन 10 साल से मैं इस पर्टिकुलर पैनल को मॉडरेट कर रहा हूँ. पिछले 10-12 साल से इस पैनल पे डिस्कशन में मॉडरेट कर रहा हूँ. मॉडरेट ही करता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मॉडरेट ही करता हूँ. पर हर पैनल में अलग अलग रीजंस होते हैं कि मीडिया ठीक से कवर क्यों नहीं करती है. कभी ये होता है कि मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है या न्यूज़ ही नहीं है या ग्लैमर नहीं है. तो इस सवाल को लेके हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, पर इस बार मुझे दो फ़र्क नज़र आ रहा है. एक है कि आई थिंक द नीडल हैज़ मूव टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा कि कौन से स्टोरीज अभी कवर हो रहे हैं. और दूसरी चीज़ जो मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल भी है, उनको मैं बीच बीच में वो खींच के लाता हूँ. अभी आई डोंट नो हाउ वेल ही इज़, बट इफ़ ही इज़ वेल आई वुड लाइक हिम टू जॉइन on the dais because his perspectives are important. और मैं एक I want to make one difference in terms of how we want to approach this issue at the end of this discussion, which is what is it that people can do. And I'm not talking about other people. I'm saying people with disabilities, what can you do in order to get your stories out? I think let's stop depending upon others. Let's see what we can do. We have a very, very illustrious panel today. I'm absolutely delighted to have a panel that is absolutely brilliant. First, I'll cover the gentleman जो यहाँ पे है नहीं. रवीश रंजन शुक्ला जो सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है एनडीटीवी से, वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे. विकी रॉय जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं और उसकी झलक हमें वो दिखाएंगे as to the work that he's doing in terms of photographing people with disability across 28 districts, and I think he's going to states, yeah, and he's going to show you some examples, and you must have seen some of it outside. Sanjana ji is both a fashion designer. She's also a member of the censor board of Delhi. I think it's going to be, and a social activist and a chairman. But I'd like to, get a full perspective from you. And then I'm delighted to have Shruti Pushkarna, who is probably the only expert on this issue currently. Usne more than 80 pieces she has written just on the issue of media, और वो media disability कैसे cover करती है. And they're actually very insightful because I've gone through most of them and found it that अलग-अलग aspects पे उन्होंने focus किया है. So it's not कि एक बार story हुआ, खत्म हो गया. But let's get on to it. I will not stop you. Can I have some of the slides out, please? Can I have the slides?
Is it possible? Yeah, okay. ये स्लाइड थोड़ा नजर लगी है ये. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये दीज आर द स्टोरीज, ये कहानियां आप आजकल अखबार में दिखाई दे रही है. ये स्टोरीज आपको ऑनलाइन या प्रिंट में दिखाई देगी. स्लाइड प्लीज. ये कॉम्बिनेशन ऑफ Paralympic achievements or Prime Minister's personal interest has resulted in a huge amount of coverage, especially on the Paralympics parts of it. ठीक है? तो what you are seeing is things which used to be earlier. पहले जो चीज़ें उतना रिपोर्ट नहीं होता था, वो धीरे धीरे the issues. There is some objection also to the issues कि भाई achievements जब होता है तब उसके बारे में बोला जाता है. But nonetheless, I'm just telling you what is it that gets covered and what does not get covered. तो दोनों चीज़ें देखेंगे. कौन सी स्टोरीज छपती है, कौन सी स्टोरीज नहीं छपती है. अगली वाली. ये इन वेरी सेम इंडिविजुअल स्टोरीज. ठीक है. ये जो है इसमें ज़्यादा ट्रैक्शन होता है और उसके बाद ट्रैक्शन के बाद उसका एक फिल्म होता है. अभी घूमर आ रहा है. तो There is different kinds of stories जो बन रही है. धीरे धीरे वो पीछे से वेयर सामने आ रहा है. स्टोरीज बन रही है, कहानियाँ बन रहे हैं, सोसाइटी के हीरोज बन रहे हैं. ठीक है. आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब सोसाइटी ये देखना शुरू करती है कि हीरोज बन रहे हैं, वो एक साथ नहीं होता है. When we start talking about it, then you have got next. Chief Justice himself has made a big statement. उनके फॉस्टर चिल्ड्रन के साथ पब्लिक में काफ़ी बार वो आते हैं, प्रेजेंस लेते हैं और आपको दिखाई देते हैं कि he's out there, he's championing a cause in a very different fashion. He's out there, he's talking about situations that need that degree of addressing. Next one, please. ठीक है. कुछ इशू बेस्ड राइटिंग होती है, बहुत रेयर है, बट इशू बेस्ड राइटिंग होती है. जैसे कि जस्ट 15% ऑफ इंडियाज डिसेबल्ड एम्प्लॉयड रेगुलर, की रेगुलर नौकरियां सिर्फ 15% डिसेबल्ड को मिलते हैं, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेस देन 5% ऑफ द स्टाफ. तो हो रही है, उतनी इंटेंसिटी से नहीं, उतनी कैंपेन मोड में नहीं, पर धीरे धीरे वो स्टोरीज लिखे जा रहे हैं. नेक्स्ट वन प्लीज. चेंज द स्लाइड प्लीज. या सिमिलरली और दूसरी चीज तो दिखाई दे रही कि ये स्टोरीज नॉट ओनली हो रही है, issues are getting spotlighted. People are going out today and they are making their stories happen. So today if you see what is happening is people with disability are standing up and saying मेरी कहानी अहम है, इसके बारे में लिखिए, इस बारे में सोचिए, इस बारे में आप लोग please debate this issue. So little by little that transition is taking place. जहाँ बैठ रहे कि stories नहीं हो रही है, मीडिया नहीं लिख रही है, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं. और इस आगे बढ़ने में it is very important to understand that the people with disabilities are the heroes. They are the ones who are stepping forward to tell their stories, and that is how really news ends up working. Next one, please. ऐसे भी stories आती हैं. ठीक है. I don't know if you remember this about a boy who was slapped by his teacher got another teacher, another school boy to slap him, and there was a communal issue related to it. But if you look at it, the defense was, I am handicapped, so therefore I asked him to do. ये story बहुत बड़ी हुई थी. Some all stories are not necessarily stories that are pleasing stories. These kind of stories also come up. Next one, please. ये तो हो गई stories that appear. अब what are the stories that don't appear? ठीक है. कौन से stories है जो कहानियाँ बनती नहीं हैं? अब ये देखिए, the next one. Smriti Irani ji launched less than 3 days ago a government program जो एक प्रोटोकॉल दिव्यांग
बच्चों के लिए एक प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राइट? इसमें बहुत ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुए। इसके पहले पैनल में डिस्कशन हुआ था ग्लोबल लोकल। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद द गेट्स फाउंडेशन, न्यूट्रिशनिस्ट प्लस the ministry have come together to talk about, to create a protocol for Divang children. कहीं नहीं छपा, इवेंट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया बुलाया गया, छपा क्या? कुछ नहीं, ठीक है? सो इट्स अ क्वेश्चन नॉट ओनली दैट सरकार हो तो छप जाएगा, गवर्नमेंट के लोग हैं तो छप जाएगा, मिनिस्टर है तो छप जाएगा, सीनियर मिनिस्टर है तो छप जाएगा, नहीं छपेगा। नेक्स्ट वन प्लीज। And the same thing happens with many government programs. बहुत सारे government program हैं, जैसे ये है accessibility standards जो MIB Secretary, Ministry of Information and Broadcasting ने किया था. Again, it did not get covered at all. So popular ministers हो, ministries हो, it does not necessarily get covered. Next one please. और कभी-कभी तो हमारी data ही very interesting interpretation होती है, जैसे कि रिगार्डिंग एजुकेशन डिसेबिलिटी वाज 62% मोर कॉमन अमॉन्ग दोज हु डिडंट हैव एनी फॉर्म ऑफ स्कूलिंग, वो उल्टा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। या अनमैरिड पीपल हैड 76 मोर डिसेबिलिटी, कि अगर आपकी शादी नहीं हुई हो दे आर 76% मोर लाइकली टू हैव डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ सेइंग। तो एंड दिस इज NHS 5, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये सरकार की यहाँ से आती है। सो यू कैन सी कि आपकी इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाती है, वो जो लिखा जा रहा है उसमें इतना समझ नहीं है कि डेटा उसका कॉजुअलिटी क्या है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये जो है एंड दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस एंड आई विल टेक द पैनल्स व्यूज ऑन दिस, कि ये पावर अभी आपको मिल रहा है। ये स्लाइड मैं 2 दिन पहले बनाया था, बट पर कल इंडियन एक्सप्रेस ने इसके ऊपर स्टोरी भी कर ली है। तो स्टोरी बनी थी विराली मोदी, शी हैड अ डिफिकल्ट टाइम इन इंडिगो एंड देन इट वाज एड्रेस्ड, बट शी हैड द पावर बिकॉज शी स्टूड अप, शी टॉक्ड अबाउट इट एंड देयरफॉर अ लॉट मोर। One of the conclusions that I would like this panel to really come to is, what can we do? Let us not just sit here and say media क्या कर सकती है, कौन सी accessibility करती है। I think now we have the power to do things, तो उस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। Now before we get into the panel, you can just switch this off now. Let's get into the first a little bit about your work. And can I start with Vicky and then come down here? Is that fine? So Vicky and then Shruti and then Sanjada. Right? So Vicky, can you please share a bit about आपने क्या काम किया है और आपके काम के बारे में थोड़ा बताएंगे? Thank you everyone. So मैं पिछले 3 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एवरीवन इज गुड एट समथिंग, बट जो सार्थक के साथ मेरा रिलेशनशिप है वो 2010 से है। मुझे याद है जब नया नया सार्थक खुला था और मेरा आना जाना होता था, डॉक्टर साहब से मिलना होता था, काफ़ी सारी लर्निंग थी। बट उसके बाद यंग एज में मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना काम में लगा रहा। बट 2020 में कोविड के दौरान बेंगलोर में एक म्यूज़ियम है, मैप म्यूज़ियम फॉर फोटोग्राफी, तो उन्होंने एक पैनल डिस्कशंस रखा और उसमें उस पैनल में मैं था और एक पर्सन थे, उनका नाम है VR फिरोज़। तो उनको बताना था कि वो अपने फील्ड में कैसे काम कर रहे हैं और मुझे बताना था कि मैं फ़ोटोग्राफी के थ्रू कैसे लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो मेरा टॉक ख़त्म होने के बाद जब फिरोज़ भाई का टॉक आया तो उन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने चीज़ें बताया। तो उनका टॉक ख़त्म होने के बाद मैंने उनको कहा कि फिरोज़ भाई, मैं आपकी पैसे दे के मदद नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अपने फ़ोटोग्राफी के थ्रू आपकी मदद कर सकता हूँ। तो टॉक ख़त्म होने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क एक काफ़ी फेमस पेज है, तो उसके जैसा अगर हम कुछ स्टार्ट कर सके। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया इंक्लूजन समिट बेंगलोर में होता है हर साल, बट कोविड के वजह से हम ये नहीं कर पा रहे।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके घर चले जाए। तो हमने एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग। तो उसके लिए मैं इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी ट्रैवल कर रहा हूँ, और जो पर्सन विद डिसेबल लोग हैं उनके घर पे जाके उनकी मैं फ़ोटो खींचता हूँ। फिर हमारे टीम से कोई उनका इंटरव्यू करते हैं और हम उनकी कहानी हर हफ्ते एक वेबसाइट में डालते हैं जो एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग के नाम से ये वेबसाइट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई सक्सेस है तो हम उसकी स्टोरी करते हैं और कोई सक्सेस नहीं है तो उसकी स्टोरी नहीं करते। हम बस गांव में जाते हैं और जो भी हमें कांटेक्ट पर्सन जिनसे कनेक्ट करता है हम उनके घर में जाके उनका फ़ोटो खींचते हैं, और वो लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। मेरे लिए खाना बना के रखते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि कहाँ पे रुकना है, मुझे हर तरीके से वो हेल्प करते हैं। और फिर मैं जब फ़ोटो खींच के आता हूँ उनका इंटरव्यू होता है, और हर हफ्ते वेबसाइट में एक स्टोरी डालते हैं। तो एक हफ्ते एक मेल स्टोरी, एक हफ्ते एक फ़ीमेल स्टोरी, ताकि जो रेशो है वो 50-50 रहे। और तो क्या होता है कि हम इसे ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हमारा इंस्टाग्राम पेज हो चाहे वेबसाइट हो। तो हमारे वेबसाइट में अभी करीब हमारे 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर है जो जिनके पास हर हफ्ते ये स्टोरी जाती है। और बहुत टाइम क्या होता है कि स्टोरी जब पब्लिश होते ही तो बहुत टाइम लोग मुझे कॉल करते हैं कि किसी ने अगर कोई स्टोरी पढ़ा और उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वो मुझे पढ़ के कॉल करते हैं कि विक्की मैंने ये कहानी पढ़ा और मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं उनको फिर डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ ताकि बीच में कोई थर्ड पर्सन ना रहे। तो ऐसे अभी तक मैंने 145 स्टोरी कवर किया हूँ, 145 से ज़्यादा ही होंगे। और जो टोटल अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो सारे डिसेबिलिटी कवर किए हैं उस दौरान। और जो बाहर आप एक छोटा सा एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप ख़त्म होने के बाद जाके देखिएगा, वो टोटल 21 जो डिसेबिलिटी है उन सब के नाम लिखे हुए हैं और उनके किस तरह के सिम्टम हैं या उनका डेली का लाइफ स्टाइल कैसा है वो आपको उन फोटोग्राफ में देखने को मिलेगा, और उनकी छोटी सी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ में मैंने ये भी कोशिश किया कि जब मैं इनको फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं इनको इस तरीके से फ़ोटो खींचूँ कि लोग इनको दया की नज़रिए से ना देखें। तो आप जब जाके बाहर वो एग्जीबिशन देखोगे आपको कोई भी फ़ोटो देख के दया नहीं आएगी, दैट आई एम श्योर। और आइडिया यही है कि हम इसको जितना ज़्यादा टाइम तक कर सके ताकि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आके अगर गूगल करता है डिसेबिलिटी वर्ड को तो उनके सामने वो उस तरह के दया वाले फ़ोटोज़ ना आ जाए, तभी वो उससे आगे के नेक्स्ट स्टेप सोच पाएंगे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं और उनकी कहानियाँ हैं साथ में, और उनके जो डिसेबिलिटी है उनका नाम ग्रीन में लिखा हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा काम है और आप लोग देखिएगा इनको। और मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे भी चलता रहे बैकग्राउंड में जब बाकी पैनल बोले, ताकि एक आइडिया हो कि मैं क्या दिखा रहा हूँ और किस तरीके का काम कर रहा हूँ। और ये मैं वॉलेंटियरली कर रहा हूँ, लाइक इसके लिए मैं कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा हूँ उनसे मैं कोई पैसे भी नहीं लेता हूँ इसके लिए। तो ये मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो मेरे जो दृष्टिबाधित दोस्त हैं ऑडियंस में उनके लिए मैं बता दूं, मैं एक मिडिल एजड वुमन हूँ जिसने वाइट, ब्लू और पिंक कलर का आउटफिट पहना है, जस्ट सम एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। तो मेरा नाम श्रुति है और आई हैव द गुड फॉर्चून टू हैव नोन सुप्रियो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बैक इन द जर्नलिज्म डेज। तो मेरा मीडिया बैकग्राउंड है, टेलीविज़न न्यूज़ से मैं आती हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने क्रॉस ओवर किया डिसेबिलिटी में तो एज अ कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल किया, बट मैंने देखा कि आप डिसेबिलिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और हर किस्म की डिसेबिलिटी को समझने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। तो आई स्टार्टेड विद ब्लाइंडनेस एंड उसके बाद मैंने न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स के साथ काम किया, अभी मैं हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो हर जगह मैंने देखा देर आर स्टोरीज़, हर जगह देर आर चैलेंजेस, हर जगह देर आर यूनिक अकाउंट्स जो मीडिया बहुत मिस कर जाता है। बट क्योंकि मैं मीडिया और डिसेबिलिटी दोनों ही पहलू में बराबर टाइम दे चुकी हूँ अब, तो मैं समझ पा रही हूँ कि वहाँ कुछ जो गैप्स हैं वो दोनों ही साइड्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ के ब्रिज करने पड़ेंगे। तो मैं एक फोर्टनाइटली कॉलम लिखती हूँ के बारे में जिसमें मीडिया एंड डिसेबिलिटी के बारे में लिखा जाता है कि किस तरीके के इश्यूज छूट जाते हैं मीडिया से, क्या हम कर सकते हैं उसको कवर करने के लिए,
या what will make it also business sense for the media to cover it? Because हर कोई charity तो नहीं कर रहा है, but there is a social contribution that we must all make. So मैं अपने काम के ज़रिए ये दर्शाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टोरीज़ नहीं है या हमेशा सिर्फ बहुत सॉरी पिटीफुल तरीके की स्टोरीज़ नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम कोई हीरो ही आके बढ़ के आए तो उसको कवरेज करें. अदर देन दैट मैं एक इंक्लूजन एडवोकेट के तौर पे काम करती हूँ. आई लुक एट इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. थैंक यू. Namaskar. Good evening, everybody. First of all, I would like to thank Sarthak and Dr. Jitendra for inviting me to this amazing platform. And thank you, panel, for making this ये बहुत important एक topic है for discussion. Because I say, know me for my ability, not my disability. And just so you all know, मैं जब छोटी थी, I was born with cross legs. So I couldn't even walk properly. I would fall, and in school, सारे बच्चे मुझ पे हंसते थे क्योंकि मेरा knees ऐसे hit करके I would go, you know, like a ball most of the time. And I used to be chubby. So I grew up being an object of, I would say, लोगों का मजाक हंसी, क्योंकि मैं जैसे चलती थी सब सोचते थे ये कैसे बतख जैसे चलती, डक जैसी, and that's how I used to walk. So बहुत थेरेपी, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए. और उसके बाद हर एक मोड पे ज़िंदगी में मैंने कुछ ना कुछ कमज़ोरी, कमी, जो सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली. एंड ये चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि लोग समझते नहीं थे what my problem was at that point. That's when I started realizing the need to understand and be sensitive कि दूसरा क्यों, कैसे और कब हमारा मदद चाहते हैं, या एक just a helping hand, that's all. So मैं बचपन से जो मेरे friends थे, we had a lot of children who couldn't read because they were blind. I would sit and read for them because I enjoyed it. And I would sing songs to them, and it was really funny. We had one of the most amazing musical groups because they are such amazing singers and musicians. So I still remember, you know, our little group that we had singing songs and motivating others. And मैं एक चीज़ बोलना चाहती, people always look at कितना हमारे पास है या नहीं है. But the most important thing is to be happy with what little we have and utilize that in the best way possible. So, एक time था where I've seen people, and in fact, one of the most powerful things that I've seen today, which I think you very rightly highlighted, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is one person. I think we should all give him a big hand for the kind of support he's brought forth to all of us. Come on, that's not an applause. Come on, everybody. Modi ji has brought up huge support in highlighting Paralympians and helping, because I've had friends at different steps of the way who have had issues. And there's always been people to step up and make sure that it's taken care of. That wasn't the case before. I think हम लोग जब school पे थे, college पे थे, these were things that were ignored. Because in a country like ours with 1 point something billion population, you always think, oh, इतने ज़्यादा लोग हैं, ये तो छोटा सा population है, छोड़ दो. No. 50% of our population are women. And in Kohi, there is so much that they have to deal with. We are having to fight every step of the way. So trust me, it is every angle that people have to go through some kind of issue or the other. But here we are coming together as a community. We are coming together to help and support each other.
And first of all, to do that is to understand the problem. So that's why I think what Sarthak and all of you are doing is amazing. And if there is a way that this can be understood and if there can be a solution, it's definitely through the media, making people understand. And I loved again what you showed, Chief Justice Chandrachud ji, you know, क्योंकि ये क्या दिखाता है that it's something that we all have to accept. It's a part of life. And just so you know, when I was little, I used to go and work with a lot of children who had different abilities. And in fact, I always like to say different because they're just different from me. मेरे में भी कोई बहुत काफी कमियां हैं. So I have seen very big families abandon the children in centers and shelters where they don't want to be associated. So a lot of you are blessed that you have families and people who are here accepting you, cherishing and supporting. And here we are, in our own way, here to give all the possible support. And media, mass communication, movies, these are the things. I remember this beautiful movie, I don't know if all of you saw it, Tare Zameen Par. That brought a whirlwind of change to so many children. And in fact, there was a beautiful ad that I saw. It was about a train, the door wouldn't shut. I don't know how many of you saw that one. आप लोगों में से कितने लोग देखा था? उसमें से कोई हिल नहीं रहा था. Finally, पीछे से, it's a girl on crutches. She walks out and then the door shuts. So it is to show that within us, what's most important to understand each other, be supportive of each other. And for that, you have to open your eyes, not just here, but the eyes to your heart and to humanity. So here we are, and hopefully this is something we'll reach out to making more impact and impetus with the media and people who can make that difference. Thank you so much. Okay, Shruti, I think I'm going to jump straight into the questions here. Is there an aversion to writing? Is Ravish joined us as yet? No, he hasn't joined. Okay. Shruti, simple question. This is about confronting. But does the media have an aversion to writing on the sector because it is uninteresting, uneventful? खबर नहीं बनती है. I mean, जब तक कोई या हादसा नहीं होता है या कोई हीरो वाला काम नहीं होता है तो इस सेक्टर को लिखा नहीं जाता है. तो ये बार बार वही सवाल होता है कि क्या है? Is it a lack of understanding, lack of empathy या खबर नहीं बनती है? और इस बारे में I want you to talk like a journalist and not like somebody who's promoting inclusiveness. क्योंकि उसी तरह से हमें we can solve the problem only in that direction. Very valid. I take that. Empathy तो नहीं है हमारे society में. Sorry to be very negative with the upstart. Empathy missing है, इसीलिए हम understanding भी missing है. और बिजनेस तो कोई भी होता है, मीडिया भी एक बिजनेस है, तो वो मैंने बोला जैसे कि चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सोच सकते हैं. इट हैज़ टू मेक सम न्यू सेंस. तो जो आपने कहानियाँ अभी दिखाई हैं, स्पेशली मैं पैरालंपिक्स का बोलूँगी, तो इस बारी पैरालंपिक्स का टैली ओलंपिक्स के टैली से ज़्यादा था. दैट्स प्रॉबली वाई द मीडिया एक्चुअली कवर्ड इट. अगर हम क्योंकि बिकॉज ये ट्विटर पे काफ़ी वायरल हो गई थी ये स्टोरी, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सडनली उस एबिलिटी को बहुत रिकग्नाइज कर लिया तो करा. बट एक खेल ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में हेडलाइंस जल्दी बना लेती है. लेकिन अगर मैं एक आम दिव्यांग जन की बात करूं और उनके मुद्दे की बात करूं, तो दैट इज़ नॉट सेंसेशनल. ऑनेस्टली, इफ आई वर अ जर्नलिस्ट टुडे, आई वोंट डू इट. आई विल कन्फेस टू इट. बिकॉज हमारी वो सेंसिबिलिटी है ही नहीं टेलीविज़न न्यूज़ की या फिर प्रिंट डेलीज़ की. और थोड़ा थोड़ा लेकिन हमें ये बढ़ोतरी मिल जाती है करने की आजकल कवरेज, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर हम फिर भी वो मुद्दे उठा ले जाते हैं. बट वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक खाली एक अवर्जन, मेरे को नहीं लगता वो ठीक वर्ड है. It's more a lack of understanding and a moral, some kind of a fear also. Some journalists, I still, obviously I have a lot of friends in the media.
आई स्पीक टू देम, उनको सच में नहीं मालूम है और एक घबराहट सी है कि इसको कैसे अप्रोच करें, कहीं हम किसी की सेंसिबिलिटी को ऑफेंड तो नहीं कर देंगे। तो वो गैप है, दैट गैप नीड्स टू बी फिल्ड विद अवेयरनेस सेशंस, कुछ सेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी। अब बहुत लोग आप देखेंगे एक मॉड्यूल्स और बुक्स निकल गई हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके की टर्मिनोलॉजी से करना चाहिए। अगर आप किसी ब्लाइंड या हियरिंग इम्पेयर्ड से इंटरव्यू लेने चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो और जो आपने इंटरेस्टिंग इमेज दिखाई थी CGI की अपने हमारे चंद्रचूड़ जी की, उससे क्या हुआ है ना, एक आइस ब्रेक होती है कि फ्रंट पेज इंडियन एक्सप्रेस पे ये न्यूज़ थी, बिल्कुल। एंड एवरीबडी ऑन दैट डे वाज टॉकिंग अबाउट इट ऑन ट्विटर। जो लोग नहीं भी कमेंट करते हैं वो भी कमेंट कर रहे थे। तो एक वो ट्रेंड सेटर हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिट्टी कैफे सुप्रीम कोर्ट में खुलवाने का इनिशिएटिव लिया। मिट्टी कैफे इज अ कैफे रन बाय अलीना आलम एंड इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड children and their families, right? And then he went on to create a Supreme Court accessibility report. So now these are the steps that will then make the media see some kind of a business sense to cover, because he's an important personality, right? So we need that. We need a push. We need a push. Okay. Vicky, I'm going to ask you this question from your perspective. आप जब सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। देयर आर सेट ऑफ वैल्यूज, यू डोंट वांट टू फाइंड सिंपैथी एम्पैथी, यू वांट टू प्रेजेंट, पर कुछ कहानियाँ अपने आप बोलती है, हाँ, और कुछ कहानियाँ यू हैव टू मेक देम से। तो आप जब ये सिलेक्शन करते हैं, राइट, कौन से कहानियाँ आपको अपीलिंग लगती है? आप, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इन अ सेंस लाइक मीडिया, राइट, कुछ कहानियाँ अपील करती है, कुछ कहानियाँ अपील नहीं करती है, राइट। स्मृति ईरानी जी is doing a wonderful thing by creating a protocol for the disabled children, but nobody is interested because that story does not exist for them as an interesting story. तो आप stories कैसे choose करते हैं? Is there a criteria, या whoever is welcoming you take that up? सो सर बेसिकली ऐसा कोई हमने प्रोटोकॉल नहीं बना रखा है कि किसी एक तरीके से हम किसी ने कुछ किया हम उसकी स्टोरी कवर करें। बिकॉज मैं इतने लोगों को शूट किया हूँ, इतने लोगों को मिला हूँ, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों को नेम फेम मिलने के बाद उनको एक ईगो भी आया है, ठीक है, एंड वो फिर आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दे सेड कि मेरी टीम बात करेगी आपसे, ठीक है, एंड उसमें फिर बहुत टाइम आपका बहुत टाइम जाता है और दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। तो दोनों चीज़ होता है, तो दूसरे लोगों को भी फिर उससे थोड़ा सा दिक्कत आती है काम करने में। तो हम जैसे मान लीजिए कि हमने ये वेबसाइट बनाया, तो हमने इंस्टाग्राम में अभी भी आप अगर जा कर के देखिएगा हम इतने सारे स्टोरी डाले हैं, बट हमारे 200-250 फॉलोवर है। बट हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम पैसे दे के फॉलोवर नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे ऑर्गेनिक बढ़ाएंगे। तो आप अगर प्योर और ऑनेस्टी के साथ काम करते जाते हो तो अपने आप अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो जब हम स्टोरी शूट करने जाते हैं तो देखिए अगर उनको डिसेबिलिटी है तो फिर वो अपने आप में एक कहानी है, ठीक है, और फिर उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको किस तरीके से शूट करूं ताकि मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन सामने रख सकूं। बिकॉज तभी लोग एक वो इंटरेस्ट लेकर के उनको देखेंगे या उनकी कहानी पढ़ेंगे। और अगर उनको जब बहुत टाइम, जैसे आजकल हम इतना बिलीव करते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है, अगर ऊपर अच्छी फ़ोटो लगाए ना, लोग सोचते हैं कि अंदर का माल भी बढ़िया होगा, ठीक है, एंड उसके साथ वो खरीद लेते हैं उस चीज़ को। तो सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं कि वो फोटोग्राफी में मैं उनको किस तरीके से उनका डेली लाइफ को दिखाऊं और कोई उनको नेगेटिव वे में ना लेके जाए। जैसे मैं सीरोज का शूट करने गया था तो मैं सोचा कि वो आगरा में है तो मैं किस तरीके से दिखाऊं कि ये कैफ़े आगरा में है। तो मैंने सोचा कि एक ताजमहल के सामने उनका फ़ोटो खींच लेता हूँ, 5 लड़कियां खड़ी है, बाहर भी वो फ़ोटो। तो मैं सोचा कि अगर मैं ताजमहल के सामने उनको फ़ोटो खींचता हूँ तो कोई इनको नेगेटिव वे में ना ले ले कि वो एसिड से उनके चेहरे ठीक नहीं है और मैं उनका ताजमहल के सामने फ़ोटो ले रहा हूँ। तो मुझे क्योंकि क्या हुआ था कि जो दिल्ली रेप केस हुआ था 2012, उसका एक फ़ोटो शूट हुआ था किसी मैगजीन के लिए एंड उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था
उसको लेके। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैंने कहा कि मैं एक फ़ोटो ताजमहल के सामने आप लोग का लेना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा जस्ट थॉट आ रहा मेरे में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, बाकी लोग जा कर के शूट करवाते हैं, हम भी शूट करवा सकते हैं, उसमें आपको इतना सोचना ही नहीं है, और कोई कुछ बोलेगा तो हमसे बात करवा दीजिएगा। तो फिर मैंने जा कर के शूट किया उनका। ठीक है। संजना जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि I mean, do you think people with disability, they themselves are reluctant to go out there and make news? One thing is what Shruti ji is saying, which is that कि media is a little cautious कि कुछ लिख दे गलत हो जाए. But is it possible that people with disability also have a fear कि भाई I need society, I need government, I need support of the community around. और खबर जो होती है वो फंडामेंटली ऐसी चीज़ होती है जो पहले नेगेटिव होती है, पॉजिटिव तो बहुत ही कम होती है. You know, it is the man bites dog, not the dog bites man, which makes story. तो आपको what do you think? Do you think this is also, do you think people with disability have a role to play in trying to get stories out there? सुप्रियो जी, I think that all of us, हम सब अंदर एक डर होता है. Even if you're a normal person, काफी लोगों को to go to media or even be heard to speak, ये सब में है. You are somebody who is very well, you know, portrayed and visible. So what is that? What is that can be done in order to? But I wasn't this way. I've had my own share of insecurities and inability and depression. Everybody goes through that. But how we overcome what we are, dealing with is what I think makes us different. सबको है दुनिया में, कोई नहीं है जिसको problems नहीं है. सबका maybe थोड़ा कम हो, सबका उससे ज़्यादा हो. But taking it the best way. Shout and you shall be heard, right? Seek and you shall receive. So sometimes हमें करना पड़ता. I have a very dear friend, Suvarna Raj. She's also a Paralympian, and उसको तो train में, she had a very big problem. So उसने उस चीज़ पर आवाज़ उठाई. And she made sure that उस पर, I think they came up with a lot of, special reform Right. after that. So एक करने से काफी को फायदा आएगा. And it's not, आजकल influencers का दुनिया है और आप सब एक influencer बन सकते हैं. आज अगर आप लोग इधर हो, you are an influencer because आप लोगों ने एक कदम उठा के बहुत आगे आ चुके हैं. So I think you are the inspiration that a lot of people want to see. बिकॉज काफ़ी लोग आप लोगों को देख के इतना इंस्पायर्ड होएगा कि हम भी ये बन सकते. सो आई थिंक लाइक डॉक्टर हियर, ही इज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. ओ माय गॉड, आई मीन अगर ये इतना कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन वो कितने लोगों को एक ह्यूज इंस्पिरेशन है. इट कैन मोबिलाइज देम टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. Thank you. That was wonderful. One last question. We are running out of time, so I'll just one last question to Shruti. What are the top 5 things media can do to report on the PWDs? Yeah, this question came up in our internal discussion before this session. So you said yes, we should talk about it. So give me that 5, and after that, if anybody wants to ask a question, please feel free. Go ahead. Think that you're going out there to cover a citizen of India, not a disabled person. It's always person first, disability after. That's why the UNCRPD has mandated the term usage of person with disability. हम सब एक story, चलती फिरती story हैं. There is always a story to tell about a person. तो उसको अगर डिसेबिलिटी की लेंस से हम हटा देंगे तो शायद इतना हार्ड सेल नहीं रहेगा हमारे न्यूज़ एडिटर को हमारे न्यूज़ रूम में, अगर हम सिर्फ उसको एक कहानी के तौर पे देखेंगे. डिसेबिलिटी एक क्रॉस कटिंग इशू है, मीडिया को ये देखना पड़ेगा, राइट? सो व्हेन यू हैव अ टीवी न्यूज़ पैनल एट प्राइम टाइम, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन गैप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इट डजंट हैव टू बी अ डिसेबिलिटी ओरिएंटेड डिस्कशन. उसमें भी एक डिसेबल्ड पर्सन को रिप्रेजेंटेशन देना उतना ही ज़रूरी है. अगर कल को इलेक्शन होने वाले हैं
तो पोल मैनिफेस्टो में एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मुझे जो चाहिए वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी उतना ही चाहिए. मेरा भी RWA का वही प्रॉब्लम है जो आपका प्रॉब्लम है. तो आप जब डिसेबिलिटी शब्द को अपने लेंस से हटा देंगे तो मीडिया वहीं पे वही स्टोरीज ढूंढ पाएगा, वही कवरेज कर पाएगा. एंड स्टॉप ट्रीटिंग देम एज हीरोज, स्टॉप ट्रीटिंग देम एज पिटीफुल इंडिविजुअल्स. या तो वो हीरो हैं या वो बेचारे हैं. प्लीज आपको वो लेंस हटा के ही देखना पड़ेगा और उनको एज इंडिविजुअल्स विद सम एबिलिटी, लाइक there is an ability, right? Like she said in the beginning, know people by their ability and not disability. Absolutely. Any questions from the floor? Does anybody want to ask anything? Good. Nobody has any questions. Let me then conclude with one couple of points. And this is really for the Sarthak team, and I see all the distinguished members there of Sarthak Advisory Board. You've had many discussions with me on how we can reach out to the media and make them report. I think let's take a different step now. Let's start creating a media persons from the community. Let's start creating our own platforms. Let's start using the strength of the community that we already have, rather than wait for an India Today I have and one Indian tiny, Express. tiny remark. One Sure. tiny remark. The other way that what you were asking, Sanjana, how can disabled people contribute to that? Get proper skills, get proper education, join the media. When Yeah. we are part of that force, we will influence mindsets. Which- and that happens. Which is exactly what I want to head towards, which is, I think there are three parts to it. One is let's create our platform. Second is let's go out and look for stories there. And I'm willing to help in making the platform, because today creating a platform online is not a problem. And the third is let us go out there and train some of you who want to get into media. And again, there I'm happy to help and get our resources involved in training those people who want to join media, train them in journalism, and then try and get them into these media offices. I think those are things that we can practically do. The discussions can continue. Sorry, you were trying. Nice. Simply put, Supriyo ji, aap sabke liye, be the change you want to see. And I think, I'm sure, as a group, it'll be a very successful change that all of you will make. Thank you so much. And I give you back 1 minute from the panel discussion. Thank you. Thank you, panelists. You guys are wonderful, and what you spoke about is fantastic. Each one of you can be an influencer, and each one of you can be a hero. Thank you, Supriyo ji. Aapke liye. No, otherwise I'll do the honors. Thank you. Thank you so much. अब हुनर की बारी